Okay, so good evening, new student. So you know that we have completed 2-3 sessions on practical organic chemistry. Today will be the last session. Only few topics are remaining. You know, we already discussed qualitative analysis, quantitative analysis. Okay. Now we are moving to some easy topics. How to purify an organic compound. Hope you understood the target. Earlier we studied how to identify a compound, how to measure the presence of a compound. Now we are going to study how to purify a compound. Imagine that मैंने आपको क्या दिया, एक chlorophyll दिया. Chlorophyll, you know, it is a mixture. You know that that is the green pigment found in leaves. It contains chlorophyll A, B, carotenoids, xanthophylls. Mixture of compounds are there in the chlorophyll present in plants, right? So if I am asked you to separate these four components from that leaf extract, how will you do? It is done by chromatography. Okay. So before studying chromatography, we have to study two techniques more. Only total 3 techniques will be there in purification. One is this one, crystallization. Another one is separation using separating funnel, and the third one is chromatography, which is the most important one, chromatography. Okay. So starting with crystallization, let me check your previous knowledge. What is a solution, Vignesh? What is a solution? Solution. Solute plus solvent. ओके, मान लो सोल्ट वाटर है तो सोल्ट वाटर में कौन सा है सोल्यूट? न्यू स्टूडेंट, सोल्ट वाटर में सोल्यूट कौन सा है? सोल्ट होता है. एंड सॉल्वेंट क्या है कनिष्का? वाटर होता है. यस. सो कैसे डिसाइड करते हो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट? जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो रहेगा सॉल्वेंट, एंड कम क्वांटिटी में जो है दैट विल बी द सोल्यूट. So imagine that I have given you a glass full of water. Okay. तो वो ग्लास फुल ऑफ वाटर में तुम लोगों को क्या करना है? धीरे धीरे सोल्ट डिसोल्व करना चाहिए. तो मैंने 1 स्पून सोल्ट दिया, तुरंत हो गया, है ना? फिर दूसरा भी दिया, दूसरा स्पून, वो भी हो गया. तीसरा स्पून भी डिसोल्व किया, फोर्थ स्पून भी. इमेजिन दैट यू डिसोल्व इट. बट as the number of spoons of salt increases, that means if you are adding more and more quantity of salt, it will be difficult to dissolve, right? Why? वाटर की मॉलिक्यूल्स है उधर, वो कहीं पे नहीं जाता है, स्पेस नहीं बचेगा. यू नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस रहता है, स्पेशियस है लिटिल बिट. गैसेस तो उतना उससे भी ज्यादा स्पेशियस है. लिक्विड्स आर मोर और लेस फ्लूइड, यू नो, इट इज एबल टू फ्लो. तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा स्पेस बचेगा उसके अंदर, so that you can dissolve some solid substances in that. बट जितना सोलिड तुम डिसोल्व करते हैं उतना स्पेस कम होते जा रहे हैं. इसकी वजह से आगे तुम्हें डिसोल्व नहीं कर सकते. बट यू कैन डिसोल्व. कैसे कर सकते हैं? हीटिंग किया तो हीटिंग किया तो उसकी वाटर के अंदर क्या होता है तन्वी? हीट किया तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कैसा होगा? बढ़ते ही या कम होता है? बढ़ते हैं, है ना? हीटिंग की वजह से जो एनर्जी मिल रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग मोर एंड मोर फास्टर. उसकी वजह से उसका डिस्टेंस भी बढ़ता है. सो वो डिस्टेंस में और सोल्ट तुम्हें डिसोल्व कर सकते हैं. समझा? मान लो तुमने 10 स्पून डिसोल्व किया, इमेजिन, हीट करके. और भी मैंने दिया तो डिसोल्व कर सकते नहीं. ओके. Imagine that I am teaching you this entire PPT in a single class. We took it in different class, right? So how will be your brain? Overloaded, right? Because already जो चाहिए उससे भी ज्यादा मैंने क्या किया है, समझाने का कोशिश किया है. और ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है सॉल्यूशंस, है ना? ज्यादा हमने डिसोल्व करने का कोशिश किया तो जाएगा नहीं. So this is known as saturation. This particular process is known as saturation. तो saturation point के ऊपर हमें क्या नहीं कर सकते, डिसोल्व नहीं कर सकते हैं. तो टेम्परेचर भी देके हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन की सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचाया. अभी उसको मैंने कूल डाउन करने के लिए जा रहा है. क्या करने के लिए जा रहा है? कूल डाउन करने के लिए जा रहा है.
So if I cool down, if I let that solution cool down, what happens? Again space is going to decrease. जो additionally dissolve किया है 10 स्पून के बाद तुमने जो डिसॉल्व किया है, नहीं तो 5 स्पून बोला ना, उसके बाद हमने गर्म किया, हाँ, तो जो तुमने एक्सेसिवली जो डिसॉल्व किया है वो सब क्रिस्टलाइज फॉर्म में बाहर आना शुरू करेंगे. तो दिस एंटायर प्रोसेस को बोलता है क्रिस्टलाइजेशन. समझा? सो क्रिस्टलाइजेशन के लिए पहले हम डिसॉल्व करना चाहिए सोल्यूट सॉल्वेंट में, उसको सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाना चाहिए. कैसे? हीट करके. एंड फाइनली यू हैव टू लेट इट कूल. कूल डाउन होने के बाद क्या होगा? जो एक्सेसिवली डिसॉल्व किया वो सब हाँ वापस क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में तुम्हें मिलेगा. एंड दैट क्रिस्टल्स विल बी द प्योरेस्ट फॉर्म, will be the purest form of that particular solute. समझा? तो ऐसे तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. समझा? यस. So just read. So this is a commonly used method for purifying solid organic compound. I told you हम इधर क्या कर रहा है? Solid solute solvent में dissolve कर रहा है. वो solid ही है जो precipitate कर रहा है. इसका मतलब pure form में क्या मिलेगा? Solid ही मिलता है. So this is only for solid organic compound. Alcohol ऐसे कर सकते हैं क्या? No, it's liquid. ओके. सो कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्ट वगैरह रहता है ना, तो जो सोल्ट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको ऐसे प्यूरिफाई कर सकते हैं. Then crystallization is the method to obtain pure solid crystal from a solution. I already told you crystallization के बाद जो crystals आते हैं वो एकदम pure रहेंगे. There is no impurities in them. The method can also be used by to purify substances using difference in solubility as well as ability to form crystals between pure and impurities in a solvent. देखो two conditions होता है crystallization की. Condition number 1, we can crystallize compounds which are having difference in solubility. For example, imagine that I want to purify a compound from an impurity. मेरे पास क्या है? I need a compound. I have to remove it from the impurity. तो impurity solvent में dissolve नहीं होता है, लेकिन the compound which I wanted to separate, that is able to dissolve in water. Imagine that there are compounds, there are A and B. Okay, P is the impurity, B is the impurity, and ये क्या नहीं करते? Do not dissolve. ये क्या नहीं होगा? Dissolve नहीं होगा. लेकिन ये क्या है? This is that particular compound. My target इसको purify करना है. And ये क्या करता है? Dissolve करता है solvent. Okay, so easily I can separate the compound which I need. Because impurity क्या है? Dissolve ही नहीं हो रहा है. Dissolve नहीं हो रहा है तो वो precipitate मतलब crystallize होगा क्या? नहीं होगा. So if impurity is unable to dissolve in a particular solvent, then we can separate by this one. Understood? अगर MCQ में ऐसा पूछा तो लिख सकते हैं what type of compounds you can separate by crystallization. में ऑप्शंस में ये होना चाहिए. समझा? सेकंड वन क्या है? एबिलिटी टू फॉर्म क्रिस्टल्स बिटवीन प्योर एंड इम्प्योरिटीज इन अ सॉल्वेंट. मान लो इम्प्योरिटी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस भी डिसॉल्व होता है, दोनों डिसॉल्व हो रहा है, बट उसमें से जो कंपाउंड मुझे चाहिए बस वही क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं. मतलब दूसरा इम्प्योरिटी वाला क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो देन आल्सो आई कैन यूज दिस टेक्निक. मान लो ए एंड बी कंपाउंड है, दोनों सोल्युबल है, लेकिन उसमें से एक ही क्रिस्टल बन रहा है, तो भी यूज कर सकते हैं ना. जो क्रिस्टल बन रहा है वो हमारा टारगेट होना चाहिए. तो डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी एज वेल एज डिफरेंस इन एबिलिटी टू क्रिस्टलाइजेशन, ये दो प्रॉपर्टी जिसको होता है वैसे कंपाउंड्स को हमें ये टेक्निक यूज करके सेपरेट कर सकते हैं. वेल अंडरस्टूड. कंडीशंस क्या होता है? यस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है? टेम्परेचर देके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहिए. नॉर्मल रूम टेम्परेचर में जो सॉल्यूशन हम बना रहा है दैट इज सैचुरेटेड. फिर भी मैंने क्या किया? फोर्सफुली डिसॉल्व करने के लिए कोशिश किया वार्म करके, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फिर उसको क्या करना? कूल करना. So you can see undisturbed crystals forming out from that particular solution. See? Yes. So highly soluble and non-crystallizable impurities will remain
इनसोल्युबल। नॉन क्रिस्टलाइजेबल मतलब जो क्रिस्टल नहीं बना वो क्या होगा, इट विल नॉट गेट डिसॉल्व। ओके, तो जो चाहिए वो भी डिसॉल्व करता है, वही डिसॉल्व करता है, और वही हमें क्रिस्टल्स देता है। So you can see an illustration here. We are adding which organic compound into water? Benzoic acid. I told you carboxylic acid की salt ऐसे हमें separate कर सकते हैं. So you made a saturated solution. Next step क्या होगा पलक? Saturated बनाना. Now what you have to do? Next slide में क्या होगा पलक? हाँ, क्रिस्टलाइजेशन। उसके लिए और गर्म करना है या ठंडा करना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए? हाँ, यस। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन करने के बाद यू हैव टू कूल इट डाउन। So can you see the crystals of benzoic acid here? That is purest. Okay, then क्या करना? Crystals तो मिला. Again, for a double filtration, you can do double purification. Second purification step में क्या करते हैं? बस जैसे हम conical शेप में फिल्टर पेपर फनल के अंदर रखते हैं और उसके अंदर से पास थ्रू करते हैं. So impurities will stick on to that filter paper itself and the pure substance will come down in the beaker. Okay, so you will get pure crystals of benzoic acid. Then fine. So technique number 1 अच्छे से समझाना. अभी कौन कौन सा बाकी है? Technique number 2 differential extraction using separating funnel and chromatography. तो देखो differential extraction क्या होता है? Have you seen separating funnel? Okay, कैसे दिखता है? कैसे दिखता है separating funnel? इसका shape देखो, फ्लावर वेस की तरह. ये देखा है रियलिटी में? ओके, हाँ, लैब में होता है. तो दिस इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड कंपाउंड्स. ओके, पहले तो क्या किया मैंने? सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड. लिक्विड को प्यूरिफाई करना है तो ये यूज कर सकते हैं. कैसा वाला लिक्विड्स? लिक्विड्स जिसमें इंप्योरिटी भी लिक्विड फॉर्म में है, समझा? तो टू लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन यू हैव टू टेक. एंड कंडीशन ये है, दोनों आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इमिसिबल. व्हाट इज इमिसिबल? एनी एग्जांपल हरमान? ऑयल इन वाटर. ओके, हाँ. सो ऑयल वाटर डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं. ओके, तो इसी तरह डिफरेंट लेयर्स फॉर्म करना चाहिए. आपस में क्या नहीं करना चाहिए? इट शुड इन मिक्स विथ ईच अदर. वैसा वाला सॉल्यूशंस को ले लो. So you can see two layer of solutions are here. Number 1, number 2. क्या करना? इधर एक क्या होता है, स्टॉपर रहते हैं जो जस्ट ओपन इट, जैसे ब्योरेट के नीचे होता है ना, इसकी तरह तुम इसको ओपन करो, टैप ओपन करने की तरह. तो पहले ये ब्लू कलर की सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा. ये सेपरेटिंग लाइन है ना इन बिटवीन द टू लिक्विड्स, वो लाइन जब इधर टच होता है स्टॉपर में तब तुरंत उसको बंद करना. फिर क्या करना? देन यू हैव टू चेंज दिस कॉनिकल फ्लास्क. दूसरा नया कॉनिकल फ्लास्क रखो, बिकॉज इसके आगे जो नीचे गिर रहा है दैट इज अनदर कंपाउंड. तो दैट लेयर क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए दोनों लेयर के बीच में. देन ओनली यू कैन डू दिस. ओके, सो बाय प्रैक्टिस व्हाट वी कैन डू, पहले नीचे जो लिक्विड है डेंसिटी जिसको ज्यादा है वो नीचे रहेगा ना, तो वो पहले सेपरेट करो. फिर नीचे का जो कॉनिकल फ्लास्क है वो बदल दो. फिर दूसरा सोल्यूशन, और भी कॉमन तीसरा चौथा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है तो सबके लिए अलग अलग कॉनिकल फ्लास्क यूज. इतना इजी है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन. So what you have to study? What are the conditions when we use this differential extraction? Simple है ना ये? Yes. हाँ, already I told you difference in solubility नहीं, mixing होना चाहिए. But मतलब there should be immiscibility, right? So conditions. The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible. Condition number 1 with each other. Clear? Then they should form two distinct layers. Condition number 2. ये दो conditions क्या है? Okay, fine. Just everything you understood कैसे separate करना है. Differential extraction बहुत easy है. And now we can move to chromatography. तो क्रोमेटोग्राफी शुरू करने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी तुम लोग पढ़ना है.
terminology number 1, what is adsorben? What is adsorption and absorption? Difference बोल सकते हो जो surface chemistry पढ़ा है? AD adsorption है तो जैसे मयूरेश ने बोला, सुना तुम लोग? It is a surface phenomenon. It is a surface phenomenon. Only जो absorption पूरा बल्क में चला रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, वाटर पूरा स्पॉन्ज के अंदर जा रहा है ना, पूरा स्पॉन्ज के अंदर जा रहा है, इसका मतलब वो सरफेस में नहीं और अंदर गया, दैट इज अब्सॉर्प्शन, ए बी अब्सॉर्प्शन। लेकिन एडसॉर्प्शन कब होता है? डी, व्हेन इट इज ओनली हैपनिंग इन द सरफेस। ओके, तो इन सम गैस मास्क, जो कोल माइंस में काम करते हैं उन लोग गैस मास्क पहनता है, तो ये मास्क क्या करते हैं, उधर जो पॉइजनस गैस होता है बस उसको ये मास्क के सरफेस में एब्सॉर्ब करते हैं, पूरा मास्क के अंदर नहीं चल जाएगा, बस ओनली ऑन द सरफेस, सो दैट इट इज सेफ फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कर। समझा? इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशन होता है एब्सॉर्प्शन के लिए। एंड यू नो कैटालिसिस, कैटलिस्ट की यूज है ना, दैट इज एन एग्जांपल फॉर एब्सॉर्प्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ही चलता है पूरा रिएक्शन। You know, catalyst is not directly taking part in the reaction, it is lowering the activation energy and it is giving a playground for that particular reactant to interact with each other. So catalyst is acting as providing a surface. Inside that catalyst, what we can see, surface of that catalyst, what we can see, reaction is occurring. Reactants are combining on the surface of that catalyst. So you understood surface phenomenon is adsorption, and जो bulk में होता है that is absorption. इधर क्रोमेटोग्राफी में हम एडसॉर्प्शन यूज कर रहा है। एडसॉर्प्शन की दूसरा फायदा क्या है, सेपरेट कर सकते, तो कैटालिसिस मैंने बोला, अभी क्या बोल रहा हूं, सेपरेशन। प्यूरिफिकेशन में भी हम एडसॉर्प्शन ही यूज कर रहा है। डन। नाउ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट क्या होता है? एडसॉर्बेट मतलब द सब्सटेंस दैट इज अंडरगोइंग एडसॉर्प्शन। मतलब मान लो अगर मैंने वो गैस मास्क के बारे में बोला ना, गैस इज एडसॉर्ब्ड बाय दैट मास्क, तो गैस जो एडसॉर्ब हो रहा है दैट इज एडसॉर्बेट। समझा? एंड एडसॉर्बेंट क्या होता है, किसके ऊपर एडसॉर्ब हो रहा है, मतलब वो मास्क, दैट इज दैट एडसॉर्बेंट। तो एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट, समझा? Now, what is stationary phase and mobile phase? In chromatography, we should use two different phases, एक stationary phase and एक mobile phase. नाम में है ना, stationary phase मतलब जो चलता नहीं, okay, it is not movable, it is stationary, उसकी molecules are stationary. Then mobile phase मतलब it has the capacity to flow, उसको भी हम use कर रहा है। Both phases should be there, stationary phase and mobile phase. Then what is eluent? You know that हम क्यों क्रोमेटोग्राफी करते हैं, सेपरेट करने के लिए। सेपरेट करके ऐसे वॉल में लगाते हैं क्या? नहीं, उसको हमें चाहिए जो हमने सेपरेट किया, वी हैव टू यूज दैट कंपाउंड फॉर फर्दर केमिकल एनालिसिस। का मतलब क्या, हम उसमें से भी निकालना चाहिए ना। मान लो ऐसा एक पेपर में मैंने डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट किया, अभी ये पेपर से मुझे वो कंपाउंड को निकालना है, आई वांट टू सेपरेट इट फ्रॉम दिस पेपर। ओके, एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए मुझे एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? So element is used to extract that particular compound from that adsorbent. Okay, now coming to different type of chromatography. So chromatography में क्या होता है, why it is chromatography, any particular meaning for chromatography? Initially it was used to separate colored compounds. Okay, chroma means it's coloring, right? Chlorophyll का example मैंने बोला, तो colored compounds को separate करने के लिए ज्यादातर यूज करते थे। अभी you know that science and technology developed so far, so a different type of chromatography है, हमको बस तीन ही पढ़ना चाहिए, column, thin layer and paper chromatography। ये तो बहुत पुराने जमाने का बात है, अभी जो चल रहा है they are HPLC, high performance liquid chromatography, GC, gas chromatography, जैसा बड़े डिवाइसेस एंड टूल्स यूज होके और अच्छे से हमें सेपरेशन पॉसिबल है। एक कंपाउंड की जितना माइन्यूट अमाउंट में एक कंपाउंड प्रेजेंट है तो भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो फूड, एक पर्टिकुलर कंपाउंड फूड मिला, उसमें फूड पॉइजन है, वी कैन आइडेंटिफाई
what type of toxin is present in that food. जितना minute quantity में है तो भी हमें identify समझा. There are lot of application for chromatography. So we only need to study that simple three techniques. So there are two basic principles. ये पूछता है. Principle number 1 adsorption chromatography. Principle number 2 partition chromatography. Adsorption I already told. I'm not going to repeat that. Partition I will say. Okay. Partition means I told you two different phases should be there. Are they? स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस. पार्टीशन करना मतलब ये स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस के बीच में ऐसे पार्टीशन का मतलब क्या है, डिवाइड करके दिया है एंड दे आर सेपरेटिंग इन बिटवीन दीस. ओके, तो एक तो पार्टीशन हो रहा है, दूसरा तो सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो रहा है. ऐसे दो दो प्रिंसिपल के ऊपर हमें क्रोमेटोग्राफी पढ़ सकते हैं. एंड two chromatography which we have to study falls under adsorption chromatography. They are column chromatography and the TLC, thin layer chromatography. And one chromatography is partition chromatography, that is paper chromatography. That is very simple. So let's start with the adsorption chromatography. I will show you the diagram first. See, this is the particular apparatus. You can see a column here. Which type of chromatography we are going to study now? Column chromatography. के लिए हमें क्या चाहिए? Column चाहिए. So in this column, you can see silica gel is filled inside this. Silica gel is filled inside this. This is our stationary phase. Silica gel or alumina is commonly used stationary phase. तो मूव कर सकते हैं क्या? ओके, उसके ऊपर हमने क्या किया है? The compound which we want to separate वो डाला है स्टेशनरी फेज के ऊपर. उसके भी ऊपर क्या किया है? यू कैन सी हमने मोबाइल पीस ऊपर से डाल दिया. ऑर्डर बताओ. स्टेशनरी फेज सबसे ऊपर, मोबाइल फेज उसके भी उसके नीचे, हाँ, मिक्सचर विच वी वांट टू सेपरेट, मतलब दोनों के बीच में आ गया है अभी मिक्सचर. So you know that as per the gravity, liquid will flow from top to bottom. तो अभी जो मोबाइल फेस हमने डाला है, that will move down. That will move down. ये मूव करते टाइम में यहाँ जो मिक्सचर हमने डाला है, उसको भी क्या करता है? उसको भी थोड़ा सा लेके जाते हैं. उसको भी क्या करते हैं? थोड़ा सा लेके जाते हैं. Now some compounds will get absorbed over here. Okay, जो बहुत अच्छे से एब्सॉर्ब करता है वो टॉप पोर्शन में ही एब्सॉर्ब होता है. फिर धीरे 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 जिसको एब्सॉर्प्शन बहुत कम है वो नीचे तक जाता है, फिर एब्सॉर्ब होता है. तो ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ दैट कॉलम इटसेल्फ यू सेपरेटेड दैट. दिस इज एब्सॉर्प्शन कॉलम फ्रॉम सिंपल. जस्ट ये इमेज याद रखो. कॉलम में स्टेशनरी फेस दैट इज सिलिका जेल और एल्यूमिना, उसके ऊपर कंपाउंड व्हिच वी वांट टू सेपरेट, उसके ऊपर स्टेशनरी मोबाइल फेस. मोबाइल फेस विल रन इनसाइड दैट कॉलम. वो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करता है ये पर्टिकुलर मिक्सचर को. एब्सॉर्प्शन होता है स्टेशनरी फेस में. बाद में क्या करना? ऐसे ही रखना, देखने के लिए मजा आएगा ना, अलग अलग कलर आ रहा है. नहीं, उससे क्या करना? वी वांट टू सेपरेट दिस. नंबर 1 यहाँ देखो, an yellow colored compound is separated. यहाँ देखो an orange colored compound is separated. हमें ये दोनों चाहिए, तो क्या करना? हम वो यूज किया ना सेपरेटिंग फनल में, वही सेम टेक्निक. क्या पोर करना एक्सट्रैक्शन के लिए? एंड में क्या पोर करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए? आई टोल्ड दैट नेम, एलुएंट. प्रोसेस का नाम एल्यूशन. हाँ, तो एलुएंट डाल रहा है मैंने. तो एलुएंट क्या करते हैं? इट विल quickly push that particular compound which is in the bottom part of the column first. Okay, eluent substance will be organic solvent itself. Okay, so then what happens? eluent की वजह से नीचे गिराना एक कंपाउंड, फिर उसको बदलना और एक कंपाउंड इसके अंदर है ना, फिर से क्या करना? दूसरा एलुएंट डाल सकते, नहीं तो सम मोर एलुएंट डाल सकते. पहले तुम बहुत कम क्वांटिटी में डाला, ओनली दैट नियरेस्ट वन को ही तुमने सेपरेट किया. अभी जो दूर बैठा है उसको भी तुम नीचे लेके आना, एलुएंट डाल के फिर सेपरेट करना. अंडरस्टूड? कॉलम chromatography is so simple. What all things you have to remember? What is the stationary phase? Silica or aluminum gel. Okay, and it is moving down the column.
Now, one thing you have to read is, I am going to ask you few questions from this. Everyone go through each and every line in this slide. Tube, that particular tube जिसमें हमने ये सब भरा, ट्यूब है ना, पहले मैंने बोला। And that's enough, because we have to study two more chromatography. Time is limited, so I'm asking you two questions only. What is the stationary phase? Google, your student. Okay, can you say the exam with? What is element? Vignesh. Extract the separated compound. We want to add some liquid. Liquid. पढ़ा लिक्विड होता है, किसने पूछा एलिमेंट क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक लिक्विड. ओके. एंड जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करता है वो ऊपर दिखता है या नीचे दिखता है? अच्छे से जो एब्सॉर्ब होता है. So we are moving to thin layer chromatography. That is also very simple. I'll show you the diagram. See, इसमें क्या होता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऊपर से नीचे गया कौन? लिक्विड, स्टेशनरी फेज. इधर नीचे से ऊपर जा रहा है. तो देखो, फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, कैन यू सी a thin layer over here? This rectangle box is called a thin layer. Okay, this thin layer is coated with the adsorbent. It's like a glass plate. ये रेक्टेंगल पीस में क्या होता है? एक ग्लास की पीस होता है, ग्लास पीस, एक ग्लास पीस होता है ए साइज में. ओके, फिर उसके ऊपर क्या कोट किया है? स्टेशनरी फेस कोट किया है. दैट इज आवर स्टेशनरी फेस. ओके, so stationary phase, the gel, silica gel or alumina, which we wanted to make it as a stationary phase, that we will coat on the surface of this glass plate. तो glass plate है, मैंने जो rectangle position में draw किया है, and that is inserted into a chamber. chamber भी मैंने separately outline किया. chamber देखा, glass plate देखा. okay, now what you have to do, chamber के अंदर थोड़ा सा इतना लेवल में सॉल्वेंट भरना. ये सॉल्वेंट क्या होगा? तुम्हारा मोबाइल फेस रहेगा. इतना समझा अच्छे से? यू हैव टू टेक अ ग्लास प्लेट, उसके ऊपर तुम स्टेशनरी फेस कोट करना चाहिए. देन यू हैव टू मेक अनदर बिगर चेंबर, जिसके नीचे पार्ट में तुम पूरा क्या किया है? स्टेशनरी मोबाइल फेस को भरा है. समझा? देन ग्लास प्लेट अभी सॉल्वेंट में डिप मत करो. डोंट टच दैट पर्टिकुलर लेयर इन दैट सॉल्वेंट. यू हैव टू कीप इट इन ए रेज्ड लेवल. फिर क्या करना? ये बेस लाइन में, मतलब वो प्लेट के नीचे एक लाइन मारना. उसके सेंटर पॉइंट में द सब्सटेंस विच यू वांट टू सेपरेट, उसका एक्सपोर्ट डालना. कैपिलरी ट्यूब से क्या करना? एक्सपोर्ट उसके अंदर डालना. समझा? या फिलर यूज करके एक्सपोर्ट डालना.
तो एक ग्रीन पिगमेंट, लेट इट बी क्लोरोफिल, लीफ एक्सट्रैक्ट मैंने डाला, समझा? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट वांट टू डिप इट इन दैट पर्टिकुलर मोबाइल फेस. दिस मोबाइल फेस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो वोलेटाइल है, तो ऊपर जाते हैं. तो जब ये ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं, so that this particular organic compound which we wanted to separate, है ना, वो सेपरेटिंग कंपाउंड भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में एब्सॉर्ब होता है. किसकी डिफरेंट लेयर में? ग्लास प्लेट के ऊपर जो स्टेशनरी फेस कोट किया ना, उसके ऊपर. तो इसके नीचे जो यूज करता है, दैट इज सोल्यूशन कॉल्ड बो सोल्यूशन, ब्यूटानॉल एसिटिक एसिड प्लस वाटर. बो सोल्यूशन इज नॉर्मली यूज्ड, TLC का सोल्यूशन. सो दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं, ऊपर 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 ऐसे जाते हैं, जाते टाइम में क्या रहेगा, बेस लाइन में जो कंपाउंड था उसको भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे सेपरेट करते हैं. ओके, तो इधर जो अच्छे से एब्सॉर्ब होता है वो नीचे होगा, तो बहुत मुश्किल से एब्सॉर्ब होता है वो ऊपर तक जाता है, क्योंकि द डायरेक्शन इज डिफरेंट हियर. अंडरस्टूड? So you can see compound A, compound B, compound C, they are absorbed at different levels of that particular thin layer. Okay, now if you take that particular distance, we can find the RF value, retention factor. RF is called a retention factor. There is a particular equation to find out the RF value. I'll show you that equation. This in partition chromatography. No, no, I'll say. Equation is slide में नहीं है. Oh, sorry. Thank you. RF, distance moved by the substance from baseline. Baseline क्या होता है? नीचे जो लाइन हमने ड्रॉ किया, जिसके ऊपर हमने क्या किया, ये लाइन जिसके ऊपर हमने वो स्पॉट डाला, दैट इज बेसलाइन. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन. इधर देखो, A compound is traveling x1 distance. Okay, so for the first compound it is x1 divided by distance moved by the L1 from baseline. L1 किधर तक गया, यहां तक गया ना, y. L1 क्या है, जो दैट स्टेशनरी वी कैन से, उसके नीचे हमने मोबाइल फेस रखा है ना, वो मोबाइल फेस के बाद हम एलिमेंट भी उसके अंदर रखता है, फिर वो भी ऊपर आते हैं. So that mobile phase, you can simply say instead of L1 you can say mobile phase. Mobile phase जितना मूव किया वो है y. तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर, मतलब जो मोबाइल फेज है वही चलता है ना सबसे ऊपर तक. यस, तो x1 by y रहेगा कंपाउंड A का RF फैक्टर, x2 by y रहेगा कंपाउंड B का RF फैक्टर, x3 by y रहेगा कंपाउंड C का RF फैक्टर. एंड रिटेंशन फैक्टर इधर देखो किसका ज्यादा है, RF3. मतलब कैसे समझा तुम्हें? हाँ, न्यूमरेटर बड़ा है ना उसका, मतलब बहुत दूर गया वो. ओके, तो RF फैक्टर इज RF3 का ज्यादा है, RF2 का उससे थोड़ा कम है, RF1 का और कम है. ये समझा है तो नेक्स्ट वन, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज वेरी सिंपल. सेम प्रोसीजर है, लेकिन प्रिंसिपल अलग है. इधर हमने क्या किया, एब्सॉर्प्शन किया ना, उधर पार्टीशन चल रहा है, तो थोड़ा और इजी है. TLC समझा? वेरी क्लियर. मूविंग टू पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. आई टोल्ड यू, इधर स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में क्या हो रहा है, पार्टीशन कर रहा है. हमने किसको पार्टीशन कर रहा है, जमीन का नहीं, फिर द कंपाउंड विच वी वांट टू सेपरेट, वही. तो इधर भी क्या लेना है, मैं जो बोला ना, एक कॉलम लेना चाहिए. दिस इज पेपर. पेपर मतलब बुक की पेपर नहीं, दिस इज क्रोमेटोग्राफिक पेपर. सेपरेट पेपर मिलता है फिल्टर पेपर की तरह. फिल्टर पेपर यूज मत करो, वो नहीं, अलग है. क्रोमेटोग्राफिक का नाम है वाटमान क्रोमेटोग्राफिक पेपर 1. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, ब्लोटिंग पेपर भी बोलता है उसको, दूसरा नाम. ओके, सो ब्लोटिंग पेपर यानी क्रोमेटोग्राफिक पेपर, यू वांट टू कीप दैट. उसके नीचे क्या करना, पेंसिल से एक लाइन मार, दैट इज द बेस लाइन हियर. क्यों पेन से नहीं मारते हो, पेन में इंक है ना, सेपरेट कर रहे हैं ना हम इसमें, तो इंक भी सेपरेट होगा. क्यों करना है ऐसे, तो पेंसिल से एक छोटा सा थोड़ा सा लाइन इधर करना. फिर लाइन करने के बाद ही डिप करना, तुरंत डिप मत करो. क्या करना, लाइन ड्रॉ करो पहले, फिर उसके सेंटर पॉइंट में क्या करना, द कंपाउंड विच यू वांट टू सेपरेट, उसका स्पॉट रखना. फिर
आराम से इसको नीचे वो चेम्बर में जो सॉल्वेंट लिया ना उसके ऊपर ऐसे डिप करो। तब तक तुम ऐसे उसको क्या करना, पकड़ के रखना ऊपर। फिर स्पोर्ट डालने के बाद धीरे से ऐसे डिप करना। डिप करके 1 घंटा 2 घंटा ऐसे रखो, स्लोली स्लोली चलता है। ओके, so 2-3 hours के बाद you can see that particular separation। तो ये सॉल्वेंट ऐसे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते टाइम में पार्टीशन हो रहा है इधर। कि पहले का स्लाइड में क्या किया, एडसॉर्प्शन किया। प्लेट के ऊपर जो सबस्ट्रेट हमने, सॉरी स्टेशनरी फेस हमने रखा ना उसमें, इधर बस मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच में क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। एंड वन क्वेश्चन दैट इज आस्किंग फ्रॉम दिस सेक्शन इज, वो पेपर है ना, दैट पेपर इज नॉट योर स्टेशनरी फेस। वो पेपर के अंदर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है, समझा। वो पेपर के छोटा छोटा होल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रैप्ड। इसलिए मैंने बोला नॉर्मल पेपर नहीं है, के अंदर मॉइस्चर ट्रैप्ड पेपर है। तो उसकी वजह से वो मॉइस्चर इज दैट स्टेशनरी फेस। अंडरस्टूड। तो ये पेपर की मॉइस्चर के बीच में और ये सॉल्वेंट के बीच में वो पार्टीशन हो रहा है। तो यू कैन सी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या रहेगा, सेपरेशंस रहेगा। फिर क्या करना, रिटेंशन फैक्टर, आरएफ फैक्टर कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हो, कंपाउंड जितने दूर गया डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट जितने दूर गया। आरएफ फैक्टर के अनुसार, आरएफ वैल्यू से तुम कैसे समझेगा कि कंपाउंड ये है। स्टैंडर्ड गूगल पे जाके हमने अगर एक आरएफ वैल्यू मान लो 1.8 आरएफ वैल्यू किसका होता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही आते हैं 1.8 आरएफ वैल्यू। ईच कंपाउंड को यूनिक आरएफ वैल्यू रहता है। तो तुम ऐसे सर्च करना जर्नल्स में या लाइब्रेरी में, अभी तो फिंगर टिप्स में है ना नॉलेज, बस गूगल में सर्च करना रिटेंशन फैक्टर 1.5 विच कंपाउंड का होता है, वो कंपाउंड आ जाएगा। दैट मींस दैट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच वी वांट टू सेपरेट। तो ऐसे अच्छे से हमें कर सकते हैं। और आजकल की दुनिया में मैंने बोला ना कंप्यूटराइज्ड हो गया, अच्छा सा डिवाइसेस आ गया है, तो हमें सर्च कुछ करने का जरूरत नहीं, कोई ऐसे डिस्प्ले करेंगे कौन सा कंपाउंड है, कितना लेवल में प्रेजेंट है, क्वांटिटी भी पता चले, समझा। इसी तरह हमें प्रोटीन्स में कौन कौन सा अमीनो एसिड होता है, बहुत बहुत चीजें ऐसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट, सेपरेशन। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से भी अच्छा है। So which all things we studied today? बोलो। क्रिस्टलाइजेशन के बाद डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यूजिंग सेपरेटिंग फनल, राइट। थर्ड वन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में 3 क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सा, कॉलम, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर